नमस्कार नमस्कार नमस्कार। मेरा नाम है राजीव कुमार बजाज यानी आरकेवी और मैं हूं इस वक्त एडवोकेट प्रदीप नमगिया जी के साथ। प्रदीप जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। और प्रदीप जी और मेरी तरफ से आप सब लोगों को जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम। वंदे मातरम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। चाइनीज में नी हाओ, जापानीज में konnichiwa, and of course bonsoir in French. Pradeep ji. Abaria Kojambo to our viewers in East Africa, South Africa, the continent of Africa, wherever they speak Swahili. Wherever they speak Swahili. Well, I tell you what, as far as Maharashtra is concerned, the politics of Maharashtra has become so interesting, but very unfortunately, at the moment it is centered around two deaths, which is rather sad. Bilkul. Beed, there was a murder, and Parvani, there was a custodial death, which is tantamount to murder. So, and the fact over here is that as far as Beed is concerned, whereas in Beed, everybody is focused on Beed, people seem to have forgotten about Parvani. Parvani के बारे में प्रदीप जी लोग इतनी बातचीत क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि उसका नाम, बेचारे का नाम सोमनाथ सूर्यवंशी था, वो जनाब दलित है, इसलिए मतलब क्या that is what the charges are against the opposition. Yes. And especially शरद पवार जी कि जहाँ मराठा है आप चले गए और जहाँ नॉन मराठा है आप नहीं गए। लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ी चीज जो सामने आ रही है, वो बार बार मतलब अंदरूनी खबर है, मुझे मालूम नहीं है. One of our guests, of course, is a very prominent BJP member. He'll of course tell us more about it. I believe Mr. Devendra Fadnavis is really and truly angry at what has happened in Beed. Beed को लेकर के आज की तारीख में देवेंद्र फडणवीस जी बहुत बहुत गुस्से में हैं. जिस प्रकार धनंजय मुंडे साहब और वाल्मीकि कराड़ साहब के ऊपर अलग अलग चीजें तकरीबन हर रोज अगर देखा जाए तो हर रोज अंजलि दमानिया जी ये कुछ ना कुछ बाहर लेकर के आ रही हैं. सो एवरी डे समथिंग न्यू इज कमिंग. मतलब भानुमति के पिटारे से और पता नहीं क्या क्या निकलेगा. इट्स अ पेंडोरास बॉक्स. प्रदीप जी नहीं, आज ये भी उजागर हो गया इनफैक्ट थ्रू सुप्रिया सुले दैट वाल्मीकि कराड़ को ईडी का नोटिस मिला था 2022 में. If ED notice has come to 2022 extortion charges against him, then he's a known habitual offender. He's a habitual criminal, it seems to be. Apart from physical crimes. And very close to Mr. Dhananjay Munde. Bilkul. Who at that time, if you remember, was in Mr. Sharad Pawar's party. Is it? Is Exactly. that the time? और अवाड़ा कंपनी से पैसे, कोई मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव से 2 करोड़ के. No, this is for engineering. I can hear some audio coming into my ear. What is it, please? Could you handle it, please? If you don't mind, there is something which is going on constantly in my ear. What is it? And now, can you please get rid of it, please? At the moment, with us, we have three very honored guests, very prominent members of the political spectrum. Mr. Pradeep Gowde of the BJP. Always a pleasure having you with us, sir. Pradeep Gowde साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका. आप हमारे पास, आप हमारे साथ आए. Thank you very much. After a long time, our old friend from the Maharashtra Navnirman Sena, Hemant Kamble साहब, looking very dapper and very well indeed. Hemant Kamble साहब, नमस्कार. नमस्कार. और धनंजय जुनेकर साहब of the Congress Party, also after a long time. जुनेकर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए. Thank you very much. Great pleasure. प्रदीप गावड़े साहब, सबसे पहले आप. गावड़े साहब, this is quite embarrassing actually for the Chief Minister. अभी ये हो क्या रहा है सर धनंजय मुंडे को लेकर के और उनके अलग चीजें जो बार बाहर आ रही हैं. Very frankly, don't you think it is time that Ajit Dada Pawar should ask Mr. Dhananjay Munde to step down? कि भाई आप रिजाइन कर दीजिए, क्या कर रहे हैं आप? क्योंकि this is putting very frankly, इसमें एम्बैरेसमेंट जो हो रही है वो देवेंद्र फडणवीस साहब को हो रही है. और क्योंकि आपके ही भारतीय जनता पार्टी की जो स्थानीय इकाई है बीड की, वो सबसे आगे है इसमें धनंजय मुंडे साहब का इस्तीफा मांगने में. अब आप बोले सर. गावड़े साहब प्लीज. जरूर. देखिए, देवेंद्र जी ने इस विषय में बहुत क्लियर स्टैंड सबके सामने रखा है. ये जो घटना बीड में हुई है, ये सबको शर्मसार करने वाली है, अमानवीय घटना है. और महाराष्ट्र में इस तरीके की गुंडागर्दी के लिए कोई स्थान नहीं है. और देवेंद्र जी ने ये अबंडेंटली क्लियर किया है कि महाराष्ट्र में वो किसी की भी गुंडागर्दी नहीं चलेगी. वो कोई भी हो, किसी भी पार्टी का हो, किसी का भी कोई क्लोज एड हो या फिर कोई भी हो, किसी की भी गुंडागर्दी महाराष्ट्र में हम चलने नहीं देंगे. ये देवेंद्र जी ने अबंडेंटली क्लियर हर बार किया है. जहां तक आप बीड की घटना की बात कर रहे हैं, तो उसके बारे में बहुत अच्छी इंक्वायरी अब चल रही है. सीआईडी क्राइम की इन्वेस्टिगेशन कर रही है. एडिशनल एसआईटी भी फॉर्म की गई है, जो एक लार्जर व्यू से इस पूरा जो घटना हुई है
उसका जो इकोसिस्टम अगर कुछ बना हुआ है तो उसकी वो इंक्वायरी करेगी। इसके उपरांत एक और न्यायिक इंक्वायरी करने की बात देवेंद्र जी ने की है। तो जहां तक भीड़ की घटना का सवाल है, उस घटना के पीछे जो कुछ लोग हैं, वो कोई भी हो, उन हर किसी के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और ये इंश्योर किया जाएगा कि इसको एक रेयरेस्ट ऑफ रेयर क्राइम करके देखा जाए और फांसी की सजा जो परपेट्रेटर्स है इस क्राइम के पीछे उन सबको की जाए। इसके लिए गवर्नमेंट काम कर रहा है। गावड़े साहब, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि जस्टिस डिलेड। शरद पवार साहब वहां पर गए, आज सुप्रिया सुले जी ने पूरे वाल्मीकि कराड का लिस्ट 2022 से लेके ईडी का नोटिस आना, सुरेश धस ने प्रॉपर्टीज जितने उन्होंने एक्यूमुलेट किए हैं, आज सारंगी महाजन भी वहां पर गई और बोले कि मुझे फोर्स किया गया वाल्मीकि कराड, एंड इनफैक्ट उन्होंने इनके नाम भी लिए, महाजन मुंडे जी के। तो हाउ डू यू सी दिस? ये एक के बाद यू नो हॉरिफिक लिस्ट ऑफ क्राइम्स कमिंग फ्रॉम बीड, और आपने ठीक है एसआईटी जुडिशियल इंक्वायरी, बट इज दिस फर्दर डिलेइंग द प्रोसेस? शरद पवार साहब ने खुद लेटर लिखा है, गावड़े साहब लेटर लिखा है कि वहां के पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स को खतरा है, जान का खतरा है फडणवीस साहब को। हाउ डू यू सी दैट ग्रेविटी, गावड़े जी? बिल्कुल, इन्वेस्टिगेशन में कोई देरी नहीं होगी और उसके उपरांत अगर कुछ और भी उनके कारनामे या फिर क्राइम्स, फाइनेंशियल क्राइम्स हो गए या फिर और कुछ क्राइम्स हो गए, वो अगर बाहर आ रहे हैं तो उस हर चीज का इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा और कड़ी से कड़ी कार्रवाई उनके ऊपर की जाएगी। हमने ही ये बात कही है, देवेंद्र जी ने ही वो बात हाउस में कही थी कि ये जो वाल्मीकि कराड है, इनके और उनका जो गुट है, उसके जो सहकारी होंगे, उन सब के खिलाफ मकोका के अंडर कार्रवाई की जाएगी। तो उसकी प्रोसीजर चल रही है। तो आप ये जो बात कर रहे थे कि अलग अलग उनके खिलाफ ऑफेंसेस रजिस्टर्ड है या फिर अलग अलग टाइप के ऑफेंसेस उनके खिलाफ है, तो वो सबको क्लब किया जाएगा और मकोका के अंडर उसको कार्रवाई की जाएगी। आप जानते होंगे कि इसका मतलब कितने रेमिफिकेशंस होते हैं, तो वो मकोका के अंडर इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और दूसरी बात, आप जो मतलब पिछला जो प्रश्न था उसमें पूछ रहे थे कि देखिए इस इन्वेस्टिगेशन में किसी के भी खिलाफ कोई भी एविडेंस आ जाएगा तो उसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे, वो व्यक्ति कोई भी हो। आप जानते होंगे कि कुछ लोगों के खिलाफ हमने ये कार्रवाई की है जिन्होंने ये जो सब एक्यूज थे, ये जो सब वाल्मीकि कराड और ये लोग थे, उनको मदद करने का काम किया था या फिर उनको शील करने का काम किया था, उनके खिलाफ भी हमने ऑफेंसेस फाइल किए हैं। तो जो भी लोग इनको मदद करेंगे उनके खिलाफ भी हम कार्रवाई करेंगे। किसी के भी खिलाफ एविडेंस मिलेगा, वो कोई भी हो, उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। लेकिन गावड़े साहब, यहाँ पर ये लग रहा है कि देयर सीम्स टू बी सम काइंड ऑफ अ माफिया रनिंग ओवर देयर। कोई माफिया राज चल रहा है वहाँ पे भीड़ में, और उसकी जो तरंगे हैं, उसके जो तार हैं, वो जुड़े हुए हैं बहुत अलग अलग जगह से। और मैं देवेंद्र फडणवीस साहब को जानता हूँ, आई डोंट थिंक ही विल रेस्ट। वो छोड़ेंगे नहीं किसी को, मुझे ऐसा लग रहा है, बिकॉज ही इज ऑलरेडी गॉट द क्लियरेंस फ्रॉम दिल्ली, ही इज ऑलरेडी गॉट द क्लियरेंस फ्रॉम एवरीवेयर कि जो भी है भाई इसको करना है। लेट मी गो अक्रॉस टू हेमंत कामले साहब। हेमंत कामले साहब, डू यू बिलीव प्रदीप गावड़े साहब and other people when they say कि देवेंद्र फडणवीस जी जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे? हेमंत कामले साहब, देखिए कैसे ना कि जिस तरह से अभी एसआईटी की जो वहां पर छानबीन हो रही है, ये सब बातें तो ठीक है कि देवेंद्र जी ने अभी एक अच्छा कदम उठाया। मेरा सवाल ये है कि वाल्मीकि कराड जिस तरह से उभरे हैं, उनके जो 10 से 15 साल या 15-20 साल में एक अति सामान्य एक व्यक्ति इतना बड़ा माफिया होता है, उसके खिलाफ जो भारतीय जनता पार्टी के वहां के जो विधायक है, वो कहते बहुत सारे गुनाहों में उनकी वो जो वहां के मतलब बेताज बादशाह। तो ऐसे मामले में मेरे ध्यान में एक सवाल उठता है कि ये इंसान, इतना छोटा इंसान, इतना बड़ा होने तक, जब तक कि संतोष देशमुख की वहां पर जिस तरह से निर्मम हत्या की गई, तब तक किसी को वाल्मीकि कराड इतना बड़ा क्रिमिनल है, ये क्या किसी को पता नहीं था? वहां के पुलिस प्रशासन या जो भी है आलाधिकारी है, उनको ये पता नहीं था? जिस तरह से भीड़ की तुलना अब बिहार से की जा रही है, जिस तरह से लोग वहां पर अब उनके खिलाफ बोलने लगे, तो इतने सालों तक आकाओं के जो आका कहते हैं और आकाओं के आका, मतलब जिस तरह से जो विधायक है वो सुरेश धस,
उन्होंने उनका जो वर्णन किया है कि आकाओं का आका, मतलब आका ये वाल्मीकि करार है, तो आकाओं का आका कौन है ये सबको अब पता चल रहा है। तो जिस तरह से ये वहां के गुनाहों को जिस तरह से बढ़ावा दिया गया, जिस तरह से दहशत को वहां पर बढ़ावा दिया गया, ये सबसे बड़ा सवाल पर उठता है, वहां के प्रशासन पर उठता है और वहां के लोक प्रतिनिधि पर उठता है कि जिस तरह से जमीन हथियाने के मामले हो, हत्याओं के मामले में, सब जगह पर आज वाल्मीकि करार, तो इतने सालों की वहां की जनता चुप क्यों है, वहां के लोक प्रतिनिधि चुप क्यों थे, ये सबसे बड़ा सवाल है। आप अभी गुनाह होने के बाद, ये मामला इतना उछलने के बाद वो SIT लगाओ, कुछ भी करो, संतोष देशमुख तो वापस नहीं आएंगे, जितने भी हत्याओं के मामले में वाल्मीकि करार शामिल थे वो लोग तो वापस नहीं। तो इतने सालों से वहां पर उन पर कार्रवाई क्यों नहीं की? कि कहीं ना कहीं वो फायदे के थे या फायदा करा के दे रहे थे, इसलिए उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। इस तरह की वहां पर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन वहां पर हैंडल, करेक्ट, और वहां पर रोक रहा था उनके खिलाफ कि वो कार्रवाई करते। ये सबसे बड़ा सवाल है। आप हेमंत जी, क्या आपको लग रहा है, हेमंत जी, अभी लक्ष्मण हाके जी ओबीसी का मुद्दा लेकर भीड़ में एक्टिव हो गए, बोल रहे कि धनंजय मुंडे एंड पंकजा मुंडे इनको टारगेट किया जा रहा है बिकॉज दे आर फ्रॉम दी वंजारा कम्युनिटी, ओबीसी कम्युनिटी। तो क्या एक कास्ट वॉर है? शरद पवार साहब भी पहले कहा कि भीड़ में एक प्रकार का कास्ट वॉर है, मराठा वर्सेस ओबीसी। क्या इस कास्ट वॉर में जस्टिस मिलेगा? बिकॉज अभी ये दिखा रहा है कि धनंजय मुंडे इज बीइंग टारगेटेड बिकॉज इज फ्रॉम दी ओबीसी कम्युनिटी। हाउ डू यू सी दैट कामले जी? पहली बात तो मेरे समझ में ये बात नहीं थी, जो गुनहगार होता है तो गुनहगार की जाति क्यों देखी जाती है, उनका धर्म क्यों देखा जाता है। अब जब संतोष देशमुख की हत्या होने के बाद वहां पर जो बंजारा विरुद्ध मराठा, इस तरह का वॉर क्यों हो रहा है? तो मतलब जो मूल जो वहां पर गुनाह हुआ है उसको कहीं ना कहीं साइड लाइन करके जो वहां की तहकीकात की दिशा को भटकाने की कोशिश हो रही है। सवाल ये है, ये बंजारा, मतलब कोई बंजारा हो, मराठा हो, किसी भी कास्ट का, तो वो अगर गुनहगार तो गुनहगार है, तो उसमें बंजारा विरुद्ध मराठा इसका ये अंजाम देने की कोशिश क्यों की जा रही है? जो गुनहगार है वो गुनहगार है, वो किस कास्ट का है, किस धर्म का है, इसमें क्या उसके सवाल क्या उठता है? और जिस तरह से इस मामले को तूल दी जा रही है और जिस तरह से इसको कास्टिज्म का रूप दे रहा है, मुझे लगता है ये आने वाली, मतलब ये महाराष्ट्र के लिए ये सही नहीं है। हम पूरे गांव में महाराष्ट्र कहते हैं, तो इस तरह से इसको तूल देना ये सही बात नहीं है। जो भी आरोपी आरोपी होता है, आरोपी की कोई जात नहीं होती है। करेक्ट। मैं कहता हूं कि आपने देखिए भारतीय जनता पार्टी ने 2009 से लेकर 13 तक जिस तरह से कांग्रेस के खिलाफ कैंपेनिंग की थी, फिर वो गोल घोटाला हो, फिर आपका क्या कॉमनवेल्थ घोटाला हो, या आपका 2G 3G स्कैम हो, या फिर वो निर्भया की हत्या हो, उसके बाद आपके भी राज में वही हो रहा है और आप उस पर कुछ नहीं बोल रहे। आप SIT गठित कर रहे हो, जब वहां पर मामला तुल पकड़ गया, कहीं ना कहीं अब तक लोगों ने होम मिनिस्टर पर तो उंगली नहीं उठाई है। आप, मुझे ये समझ में नहीं आता कि विरोधी जो दल है अब तक विरोध जो कौन है, होम मिनिस्टर कौन है, चीफ मिनिस्टर, उनके पास ही होम मिनिस्टर है। तो कहीं ना कहीं लॉ ऑर्डर सिचुएशन जब बिगड़ रही है तो वो भी उतने जिम्मेदार है। क्या नहीं हो रहा है महाराष्ट्र में, क्या नहीं हो रहा है? आप पुनः की घटना देखो, सब जगह देखो क्या हो रहा है जी। तो कुछ घटना होने के बाद अब SIT करो, CID करो, तो 10-15 सालों से वहां पर जिस तरह से दहशत का माहौल था उसको कंट्रोल करने की कोशिश क्यों नहीं की? ना ओवर हियर हेमंत कामले साहब, ये तो रही भीड़ की बात। इसके पहले कि मैं धनंजय जुनारकर साहब के पास था, एडवोकेट धनंजय जुनारकर साहब हमारे साथ हैं। हेमंत कामले साहब, परभनी के बारे में कोई ज्यादा बात नहीं हो रही अभी। वहां पे भी तो कस्टोडियल डेथ हुई है ना, सोमनाथ सूर्यवंशी की कस्टोडियल डेथ हुई है, जिसमें 2 पुलिस वालों को सस्पेंड किया गया है, एक इंक्वायरी कमेटी बिठाई गई है। तो व्हाट इज गोइंग ऑन हियर? मतलब कि ये पहले महाराष्ट्र में नहीं होता था सर, ये अभी क्या हो रहा है, ये बताइए कामले साहब। नहीं, मैंने वही तो सवाल उठाया ना, तो सोमनाथ सूर्यवंशी हो या फिर संतोष देशमुख हो या फिर पुणे की घटना हो, कितने सारे क्राइम्स वहां पर हो रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? मतलब जिस तरह से वेपन्स के लाइसेंस भीड़ में बांटे गए, इतनी बड़ी क्या आपदा थी वहां पर, इतनी क्या तादाद में जो लाइसेंस बांटे गए, क्या उनको प्रोटेक्शन की जरूरत पड़ गई? और किसको, मतलब लाइसेंस किसको दिया जाता है? जो भी वेपन लाइसेंस है वो किसको दिया जाता है?
तो इतनी बड़ी तादाद में जब लाइसेंस दिए गए, क्या पुलिस ने छानबीन नहीं की थी? किसके रेफरेंस पर ये लाइसेंस दिए गए? या लाइसेंस के बिना लाइसेंस के वहां पर हथियार यूज करते हैं? जिस तरह के सरेआम फायरिंग की जा रही है वहां, तो सवाल यहाँ पर वही है कि भाई पुलिस प्रशासन हो या वहां पर के जो भी आला अफसर हो या फिर वहां के लोग प्रतिनिधि जी, क्या भीड़ की? देखिए, भीड़ का नाम पहले किस बात की आता था कि सबसे ज्यादा किसानों की जो आत्महत्या है इसके लिए भीड़ का नाम आता है। आज भीड़ किसके लिए जाना जाता है कि वहां की दहशत, वाल्मीकि करार, आकाओं के आका, ये नई भीड़ and extortion. And extortion. Most Extortion. important thing. Yes. Yes. Which is rather sad. धनंजय जुनेरकर साहब भीड़ के ऊपर तो हर कोई बात कर रहा है, हम भी कर रहे हैं, हर कोई कर रहा है। इट इज टेरिबल जो वहां पर जो हो रहा है। बहुत मतलब ऐसी चीजें महाराष्ट्र में नहीं होनी चाहिए, सीधी सादी बात है, लेकिन हो रही हैं। दुखद बात यह हो रही है। और लेकिन परभणी के बारे में अभी तक सिर्फ कांग्रेस अग्रसर है उसमें परभणी के बारे में बात करने के लिए। ये जरा विडंबना क्या है सर? जुनेरकर साहब जरा बताएं प्लीज। परभणी में भी देखो जिस प्रकार से पुलिस ने सूर्यवंशी जी को पीटा है और उनकी उसमें डेथ हो गई, उसके ऊपर भी विरोधियों ने जब तक आवाज उठाई नहीं, जब तक कोई कार्रवाई हो नहीं रही थी। आदरणीय रामदास आठवले जी ने भी कहा है कि ये पुलिस के मारहाण के बाद, पुलिस के पिटाई के बाद ही उसकी वो डेथ हुई है। और आदरणीय राहुल गांधी जी वहां खुद गए और वहां उन्होंने ये बात कही थी, तो एक विरोध के लिए विरोध करता है करके आदमी हमारे पार्टी के ऊपर आरोप करने का काम सब चल रहा था। लेकिन आप देखिए कि जब से ये गए 8-9 साल 10 साल से ये गृह मंत्रालय है जो बीजेपी के पास ही है। फिर आप देखिए कि बदलापुर की घटना हो, पूना की घटना हो, बीड़ कराड़ के हो या आपकी ये परभणी वाला किस्सा हो, पुलिस के मन में कायदे के प्रति खुद ही आदर नहीं है और कोई डर नहीं है। और जो जितने भी गुंडे लोग जिस प्रकार से काम कर रहे हैं, जिस प्रकार से टेरर कर रहे हैं, जिस प्रकार से पूरे देश में मुझे लगता है सबसे ज्यादा रिवॉल्वर के लाइसेंस जो है ये बीड़ जिले में ही बांटे गए हैं। कौन आदमी क्या किस चीज के लिए वो रिवॉल्वर वापर रहा है, उसका रिकॉर्ड क्या है, वो आदमी क्या कर रहा है, कितने क्रिमिनल रिकॉर्ड उसके ऊपर है, पुलिस को सब कुछ मालूम होता है। अगर पुलिस ने सोच लिया तो पुलिस 1 घंटे में सबको अंदर कर सकती है और वहां क्राइम का नामो निशान मिटा सकती है। लेकिन ये जो आका के आका जो उन्होंने बात बताई, अभी बराबर बात बताई कि जितने आका काम कर रहे हैं उनके दबाव में कोई पुलिस कुछ काम नहीं कर रही। जहां काम करना चाहिए वहां पुलिस काम करते दिख नहीं रही, और जहां नहीं जरूरत नहीं है वहां अंतरवाली में भी वहां इन्होंने लाठीमार किया था, वहां भी ईमानदारी से शांति से बैठने वाले लोगों को पीटा था। उसी प्रकार इन्होंने ये सूर्यवंशी के साथ भी किया है। ये बिल्कुल गलत किया है और सिर्फ सस्पेंड करके नहीं चलेगा, उसके लिए न्यायिक जांच बिठानी चाहिए, तभी काम और न्याय मिलेगा। जुनेरकर साहब, सुप्रिया सुले जी ने हाईलाइट कर दिया कि यहाँ पर 2 प्रकार के कानून एप्लीकेशन ऑफ लॉ चल रहा है। जहां वाल्मीकि कराड़ को ईडी का नोटिस 2022 में मिला, कोई कार्रवाई नहीं हो गया, उसके कुछ नो इन्वेस्टिगेशन एट ऑल, बट एट द सेम टाइम संजय राउत अंदर, अनिल देशमुख जेल के अंदर, नवाब मलिक जेल के अंदर। तो जहां ईडी के नोटिस कुछ लोग को मिलता है, कोई कार्रवाई नहीं होता है, बट और ऑपोजिशन लीडर्स को मिलता है तो सब उठा के डाल देते हैं अंदर। तो क्या is application of law very partial where enforcement directorate, central agencies and the state is concerned? How do you see जुनेरकर साहब? बिल्कुल सर, इन्होंने अगर ईडी की और इनकम टैक्स की 100 रेड गिराई रहेगी तो उसमें से 95% रेड जो है विरोधी पार्टियों के ऊपर ही गिराई है। अभी आप नारायण राणे जी को देखो, प्रताप सरनाइक देखो, यशवंत जाधव, यामिनी जाधव, भावना गवड़ी, अजित पवार, हसन मुशर्रफ, अशोक चौहान, इन लोग के सबके नाम देखो। इनके ऊपर ईडी का एक तो भय दिया गया या इनके ऊपर कार्रवाई की नोटिस से गई, उसके बाद या तो ये भाजपा में शामिल हो गए या तो भाजपा को सपोर्ट करने के लिए उन्होंने अपना रोल वहां बना लिया अलग से। तो इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का एक ही टारगेट है कि मैक्सिमम जगह अपनी सरकार बननी चाहिए। अगर गलती से भी दूसरी पार्टी की, विरोधी पार्टी की सरकार है तो ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स के माध्यम से उनको सरकार गिरानी है, डराना है और राज्य सरकार उनको वहां से अपनी वहां जमा बिठानी है। इसी के एक ही चीज के ऊपर ये लोग कंटिन्यूअसली काम कर रहे हैं। जी, लेट्स गो अक्रॉस टू गावड़े साहब। गावड़े साहब, ये क्या माजरा है सर? इसमें एक बार फिर ये बात आ रही है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की कि भाई एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है ज्यादातर 95% सिर्फ विरोधी पक्ष के
नेताओं के ऊपर ही एक्शन लेता है। अब 2022 में अगर कराड़ साहब को ईडी का नोटिस आया था, उसके ऊपर क्या कार्रवाई हुई? मतलब यूजुअली क्या होता है, ईडी का अगर बहुत सीरियस मैटर होता है तो यूजुअली कस्टडी सॉर्ट, कस्टडी मिल भी जाती है। पीएमएलए कोर्ट ज्यादातर कभी मना नहीं करते कस्टडी देने के लिए। तो यहां पर तो ना कस्टडी हुई, ना इनकी कोई क्वेश्चनिंग हुई, ना कुछ इंटरोगेशन हुआ। ये क्या चल रहा है सर, जरा बताएंगे प्लीज गावड़े साहब। देखिए, हमारे लिए ये जो भीड़ की घटना हुई है, ये इश्यू बिल्कुल पॉलिटिकल नहीं है, इसलिए मैं पॉलिटिकल कुछ बोलना नहीं चाहता था जी। लेकिन हमारे कांग्रेस के मित्र ने अभी कुछ लॉ एंड ऑर्डर के बारे में कुछ बातें कही जी। तो जब महाराष्ट्र में एमवीए का गवर्नमेंट था तो उस वक्त लॉ एंड ऑर्डर की परिस्थिति क्या थी आप जानते हैं। 100 करोड़ की वसूली चला करती थी और अगर उसमें कोई सम्मिलित पाया गया तो उसके लिए मुख्यमंत्री खुद कहा करते थे वहां कोई लादेन नहीं है। ये कह के पूरी तरह से वो जो पूरा इकोसिस्टम था गुंडागर्दी वाला या फिर हफ्तेखोरी वाला, उसको प्रोटेक्ट किया जा रहा था। ऑन द कॉन्ट्ररी, हमारे शासन में कुछ घटनाएं हुई है तो हमने किसी को प्रोटेक्ट नहीं किया। भीड़ की घटना में भी अगर हमको प्राइमा फेसी लगा कि कुछ पुलिस वालों ने अपना काम ठीक से नहीं किया तो उनके ऊपर कार्रवाई की गई है। परगबनी की घटना में भी हमको कुछ ऐसा लगा तो हमने वहां पर भी कार्रवाई की है। किसी ने भी हमारी गवर्नमेंट में ये जो घटनाएं हुई है इसको डायरेक्टली इनडायरेक्टली जस्टिफाई या फिर प्रोटेक्ट करने का काम नहीं किया। जो आप जानते होंगे कि एमवीए के गवर्नमेंट में डायरेक्टली एक्सप्लिसिटली प्रोटेक्ट किया जा रहा था जो अक्यूज है या फिर जो उस घटना में सम्मिलित है। तो ये जो डिफरेंस है वो आप देख रहे होंगे। दूसरी बात, आपने वाल्मीकि कराड़ के खिलाफ कुछ ईडी नोटिस के बारे में कही, तो अगर उनके खिलाफ कुछ मुकदमा है तो उसके ऊपर कार्रवाई जरूर होगी। देखिए, ईडी का नोटिस, मैं मतलब वाल्मीकि कराड़ को अपार्ट रखिए आप, लेकिन ईडी का नोटिस बहुत लोगों को आता है और अगर उसके खिलाफ नोटिस के बाद अगर उसने कुछ अपना पक्ष रखा तो कार्रवाई आगे नहीं होती। मैं नहीं ये कह रहा कि यहाँ इस केस में वैसा हुआ होगा, लेकिन फिर भी उस केस का स्टेटस क्या है ये देखना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको ये अश्योर करता हूँ कि ये जो साम्राज्य अगर कुछ उनका होगा या फिर कुछ इकोसिस्टम बनी होगी, मतलब जो एक्सटॉर्शन कर रही है, जो वहां पे बिजनेसेस है उसको थ्रेटन कर रही है, ऐसी अगर कुछ इकोसिस्टम वहां पर बनी होगी तो उसको जड़ से मिटाने का काम हम करेंगे। लेकिन यहाँ पे गावड़े साहब, बिल्कुल नहीं देखेंगे कि वो इंसान किसका करीबी है या फिर किसका करीबी नहीं है। लेकिन यहाँ पे गावड़े साहब एक चीज मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। हमारे संघ के बहुत लोग हैं और बीजेपी के भी बहुत लोग हैं, बड़े वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के, जो पुराने भारतीय जनसंघ में भी हुआ करते थे तब से, आज भी बीजेपी में हैं। सर, विच इज वाई दे हैड एक्सप्रेस्ड, आई एम नॉट श्योर वेदर यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग, बट आई लीव इट टू योर जजमेंट। आपकी जजमेंट के ऊपर मैं छोड़ता हूँ। भारतीय जनसंघ के बहुत वरिष्ठ नेता और वरिष्ठ कार्यकर्ता, वो तो अपने आप को कार्यकर्ता ही बोलते हैं, जो भारतीय जनसंघ का है, जो अभी भी बीजेपी में है, वो तो अपने आप को नेता कभी बोलता ही नहीं है, सीधी बात है। इसी प्रकार आरएसएस के भी बहुत वरिष्ठ लोग हैं जो एसोसिएटेड हैं। तभी इन लोगों ने बहुत आशंका जताई थी जब अजीत दादा पवार एनसीपी के साथ भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे साहब की सेना ने करार कर लिया और एक अलायंस बना ली थी। उनका ये कहना था भाई किनको आप साथ में ला रहे हैं, जरा आप देख लीजिए, क्योंकि दिस विल लीड टू अ वेरी एम्बैरेसिंग सिचुएशन। क्योंकि इनकी बैकग्राउंड क्या है, किस प्रकार इनकी क्या कार्यशैली है, ये किसी से छुपा नहीं है। गावड़े साहब प्लीज अब आप बोलें। देखिए, हमारा जो महाराष्ट्र में अलायंस एनसीपी के साथ है वो एक प्योर पॉलिटिकल अलायंस है। हमारा अलायंस जो है वो आइडियोलॉजिकल अलायंस नहीं है जी। महाराष्ट्र के विकास के लिए अजीत दादा पवार और उनकी पार्टी हमारे साथ आई है और हमारा ये मानना है कि मोदी जी के नेतृत्व के ऊपर भरोसा रखकर और भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां है विकास के बारे में, उसके ऊपर जो भी भरोसा रखकर आएगा उसका हम स्वागत करें। बाकी कुछ आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हो सकते हैं, लेकिन आपने जो बात कही कार्यशैली के बारे में, उनकी पार्टी की या फिर उनके पार्टी के लोगों की कार्यशैली ऐसी है और उसको हम कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं। हम किसी भी पार्टी की कार्यशैली को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करेंगे। किसी भी पार्टी का नेता हो, वो एनसीपी का होगा, शिवसेना का होगा या फिर हमारी पार्टी का होगा, अगर वो किसी इस तरीके के घटना में उसका डायरेक्ट इनडायरेक्ट अगर कुछ इन्वॉल्वमेंट होगा तो हम किसी को भी नहीं बख्शेंगे। वो हमारे पार्टी का भी क्यों ना हो, हम उसको भी नहीं बख्शेंगे। न बख्श रहे हैं गावड़े साहब। एक मिनट आप देखिए, भीड़ की घटना में भी देखिए, सुरेश दस जो हमारे एमएलए है वो इस बात को रख रहे हैं और वो ये इंश्योर कर रहे हैं कि इसमें कार्रवाई होनी चाहिए और किसी को बख्शा नहीं जाना चाहिए।
हमारी पार्टी में से किसी ने उनको ये नहीं कहा कि आप उस विषय के बारे में बात मत करिए क्योंकि सम पीपल्स आर इन्वॉल्व या फिर अलेजली इन्वॉल्व। हमारा यह मानना है कि वो वहां के विधायक है, उस जिले के विधायक है, दूसरे भी जो हमारे वहां के लोग प्रतिनिधि है वो भी इस विषय में बात कर रहे हैं, तो हम भी इस विषय को आगे लेके जा रहे हैं। हम भी ये इंश्योर कर रहे हैं कि इस विषय में अगर कोई प्रोटेक्ट करने की बात कर रहा है तो हम उसको प्रोटेक्ट नहीं करने देंगे, वो कोई भी हो जी। इस विषय में नो कॉम्प्रोमाइज। राइट Gowda sir, but selective implementation of Enforcement Directorate PMLA, जिस प्रकार से सुप्रिया सुले ने आरोप लगाया, धनंजय जुजोरकर साहब यहाँ पर हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता, उन्होंने कहा अजीत पवार, हसन मुशर्रफ, छगन भुजबल, 10 ऐसे एग्जाम्पल है, मगर एक भी एग्जाम्पल ये नहीं है कि आपने अपने ही पार्टी के किसी को अंदर, तो इज इट टोटली दिख रहा है कि सामने खुलेआम दिख रहा है कि यू आर नॉट एनफोर्सिंग द लॉ एज पर द रूल ऑफ लॉ, सिलेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ लॉ। गावड़े साहब नहीं, बिल्कुल सिलेक्टिव नहीं है। अगर उनकी पार्टी से संबंधित लोगों ने मनी लॉन्ड्रिंग किया होगा या फिर कोई भ्रष्टाचार किया होगा तो उसके विषय में कार्रवाई होगी। आप जानते होंगे कि जब कांग्रेस का गवर्नमेंट था तो उस वक्त सीबीआई के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि ये केज्ड पैरेट है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। हमारे बारे में ऐसी कोई टिप्पणी नहीं की है कि हम जो एजेंसीज है उसका पॉलिटिकल वापर कर रहे हैं। देखिए क्या होता है, अगर एजेंसीज जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज है अगर वो काम नहीं करेगी तो लोग यह कहेंगे कि एजेंसीज काम नहीं कर रही है। ईडी क्या काम करती है ये किसी को पता भी नहीं था, लेकिन 2014 के बाद आप देखिए कि कितनी ज्यादा प्रॉपर्टीज जो थी, जो ब्लैक मनी से एक्वायर्ड की थी या फिर शेल कंपनीज थ्रू की थी या फिर मनी लॉन्ड्रिंग करके जो प्रॉपर्टीज थी, वो लगभग 1 लाख करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टीज अटैच की है। ये पैसा किसका है? आप चाहते हैं क्या या फिर कांग्रेस के लोग ये चाहते हैं क्या ये जो इंपायर तैयार किए हैं मनी लॉन्ड्रिंग के थ्रू या फिर ब्लैक मनी के थ्रू, इसके ऊपर बिल्कुल कार्रवाई नहीं की जाए? बट ब्लैक मनी इस तरीके से उसको प्रोटेक्ट किया जाए। सर, अटैचमेंट डज नॉट मीन जो कन्विक्शन। काम कर रही है उससे कितनी प्रॉपर्टी अटैच की गई है वो भी आप एक बार देखिए। ये पैसा किसका है? ये पैसा आम जनता का है। लेकिन गावड़े साहब, और ये हम करेंगे। Gowda Sahab, that is a misnomer. That is slightly misleading. This is part of a case where attachment has taken place, attachment of accounts, attachment of property, assets, etc. Those cases have still to be proven. Let's be very clear. आगे जाकर के, if the Supreme Court rules in favor of the accused, all those will have to be let go, as has happened in so many cases. सुप्रीम कोर्ट ने तो इनफैक्ट ये भी बोला है कि आप लोग आंख बंद करके हर चीज को अटैच कर देते हैं, वी विल नॉट टॉलरेट इट। दिस इज एन ऑर्डर गिवन बाय द सुप्रीम कोर्ट। सो बट दैट विल बी अ वेरी लॉन्ग डिस्कशन, लेट्स नॉट गो इनटू दैट। ऑल दैट वी आर होपिंग फॉर इज, एंड वी आर प्लीडिंग एंड अपीलिंग टू द गवर्नमेंट दैट दिस बीड थिंग मस्ट बी पुट अ स्टॉप टू, बिकॉज यू कांट हैव अ माफिया टाउन। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल वो भीड़ जो है, जैसे अभी कामले साहब ने कहा कि वाल्मीकि कराड़ साहब क्या हुआ करते थे सारी दुनिया जानती है, गोपीनाथ मुंडे जी के आसपास हुआ करते थे, फिर उसके बाद धनंजय मुंडे के यहाँ चले गए, उनके डोमेस्टिक हुआ करते थे, और वहां से जो उनका राइज हुआ है वो किसी से छुपा नहीं है। कामले साहब, डू यू बिलीव दैट द गवर्नमेंट इज टेकिंग ऑल द स्टेप्स नेसेसरी? जो सरकार को पूरे कदम लेने चाहिए, क्या वो लिए जा रहे हैं? कामले साहब, पहले तो हमारे जो सहयोगी यहाँ पर थे, जो जस्टिफिकेशन दे रहे हैं कि भाई हमारा जो अलायंस है ये आइडियोलॉजिकल नहीं है, ये पॉलिटिकल अलायंस है। ये पहली बार मुझे पता चला कि ऐसे भी कोई अलायंस होता है। ये आइडियोलॉजिकल मतलब आइडियोलॉजी आपकी मैच कैसे कर, मतलब आप किस तरह की बात कर रहे हैं? अजीत पवार पर 70,000 करोड़ के जो इरिगेशन घोटाले का आरोप किसने किया था? तो आपने ये आइडियोलॉजिकल अलायंस किया था या पॉलिटिकल अलायंस किया? फिर उनको क्लीन चिट देकर आज अजीत पवार साहब कहते हैं कि भाई धनंजय मुंडे को तब तक इस्तीफा देने की जरूरत नहीं है जब तक वो वहां पर कोई जिस तरह से उनको आरोप है वो पूरी तरह प्रूव नहीं होता। मतलब ये किस तरह की बातें हैं? दूसरी बात तो ये है कि आपने अभी कहा कि भाई वाल्मीकि कराड़ का जो राइज है पिछले 10 या 15 सालों से, तो मैंने पहले ही मेरे अपेयरेंस में कह दिया था कि किस तरह से 10 या 15 सालों से इनको आइसोलेट किया जाता है, इनको कैसे साइडलाइन किया गया कि इनके पर पुलिस प्रशासन या वहां के आला जो भी लोग हैं उन्होंने यहाँ पर ध्यान नहीं दिया। अब बात यहाँ पर आइडियोलॉजी, इसकी क्या बात हो रही है? किस आइडियोलॉजी की बात कर रहे हैं साहब? आपने अब कहा कि भाई जितने विरोधियों के जो नेता है उन पर एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट जो
कार्रवाई करके, तो आपने कितने लोगों को कार्रवाई की? आपके मोहित कंबोज आपके पार्टी के, उन पर आपने क्या कार्रवाई की? उन्होंने बीच में अपना नाम मोहित भारतीय किया था, फिर वो मोहित कंबोज हो गए। आपके पार्टी के लोग हैं, क्या वो पूरी तरह साफ है? क्या बता सकते हैं? क्या दावे के साथ कह सकते हैं? क्या सब जितने भ्रष्टाचारी है राजनेताओं में, सब कांग्रेस में है, सब एनसीपी में है, सब शिवसेना शिंदे गुट में है, शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट में है, या अलग अलग पार्टियों में है, सिर्फ और भारतीय जनता पार्टी में सब साफ है? आप जिस तरह से पार्शियल इस जो कार्रवाई कर रहे हैं एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट तो कोई भी, वो आप आपके पार्टियों में नहीं ढूंढ नहीं पा रहे। और जिन लोगों को आपने पार्टियों में लिया है, क्या वो साफ हो गए? कितने नाम गिनाओ आपको? आपके जो 21 लोगों ने जो शपथ ली है मिनिस्टरशिप की, उसमें 10 तो बाहर के हैं, एनसीपी कांग्रेस और अलग अलग पार्टियों से लिए है। तो क्या सब साफ है? उन पर कौन कौन से गुना है, उनके ऊपर कितने फाइनेंशियल फ्रॉड्स के केस है, उनको तो आपने साफ कर दिया। तो ये नया फॉर्मूला आपने जो लाया है ना, वाराणसी के वहां के जो कल से लेके आए, और जो भी भ्रष्टाचारी हो विरोधी पक्ष का, उस पर डालते हैं, उसको साफ करते हैं, वो शुद्ध हो जाता है और बीजेपी में शामिल हो जाता है। तो ये नया ट्रेंड है, आपकी नई आइडियोलॉजी है कि दूसरे पार्टी के जो भी भ्रष्टाचारी है उनको आप अपनी तरफ से उनका जो भी है शुद्धिकरण करते हैं, अपने पार्टी में लेते हैं। ये नया जस्टिफिकेशन है आपका। तो इस तरह से महाराष्ट्र का जो अब तक महाराष्ट्र को हम पूर्वगामी कहते थे, अब हमारा बीड का जो बीड की जो तुलना है वो बिहार से की जाती है, जबकि बिहार आज कहीं ना कहीं आगे जा रहा है और महाराष्ट्र का पीछे लेके जा रहे हैं। अब महाराष्ट्र के जितने भी इंडस्ट्रीज है बाहर जा रहे हैं, यहाँ पर बेरोजगारी की समस्या है। आपने 1,500 देखिए लाड़की बहन के जो वोट थे वो खरीदे, अब लाड़की बहन के वेरिफिकेशन हो रहे हैं, ये सही है गलत है, इनका जो इनकम है वो सही है गलत है। किस तरह की राजनीति कर रहे हैं आपको जो पावर चाहिए, सत्ता चाहिए, किस लिए चाहिए? इस तरह के काम करने के लिए। Now over here, one second, sir. Kamle साहब, I'll have to stop you. Kamle साहब, I'll have to stop you. Kamle साहब, 1 second. अभी आपने लड़की बहन के बारे में बात करी. This is a very important point. I would like to ask you this. लड़की बहन योजना पर कोई अंकुश नहीं था, जो क्राइटेरिया था क्या था मुझे मालूम नहीं है। ये था कि भाई बीपीएल में जो भी फैमिलीज में आते हैं उनको लड़की बहन योजना के तहत ये वजीफा मिलेगा, यानी 1,500 रुपए, 7,500 रुपए दिए इलेक्शन के पहले, और उसके बाद अब लेटेस्ट इंस्टॉलमेंट भी आ गई है 1,500 रुपए की, बहुत लोगों को मिल गया। इनफैक्ट कई लोगों को तो 9,000 भी मिले हैं। अब ये कहा जा रहा है कि नाउ वील हैव टू इन्वेस्टिगेट। तो आपसे पूछना चाहता हूं कामले साहब, उसके बाद मैं चाहूंगा कि गावड़े साहब इस पर जवाब दें, बट अगर मान लीजिए इन्वेस्टिगेशन में पाया जाता है कि इन फला इंडिविजुअल्स को गलती से पैसे दे दिए गए और ये क्राइटेरिया में फिट नहीं आते हैं, तो क्या सरकार वो पैसे वसूल करेगी वापस? कामले साहब, और क्या करने चाहिए? व्हाट डू यू थिंक, हेमंत कामले साहब? इसका राजीव जी, इसका जवाब तो गावड़े साहब देंगे ना जी। मैं आपसे पूछ रहा हूं, डू यू थिंक द मनी शुड बी, द गवर्नमेंट शुड टेक बैक द मनी? मैंने पहले ही कह दिया कि ये जो लड़की बहन के जो पैसे दिए गए, वो शिवराज चौहान जी ने एमपी में, मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना थी, इसको कॉपी करके यहाँ पर लेके आए। अब आपने पैसे दिए, तभी आपने रैंडमली पैसे बांट दिए, सबके खाते में पैसे गए, और आप अभी नॉर्म सेट कर रहे हो कि भाई ये क्राइटेरिया में नहीं रहेंगे, जिन्होंने पैसे ऐसे लिए हैं वो क्राइटेरिया नहीं बैठते तो वो पैसे वापस लेंगे या उनके अकाउंट फ्रीज कर देंगे। तो ये कहीं ना कहीं जो लड़की जो बहनों ने उनको वोटिंग किया, उनके साथ धोखाधड़ी नहीं है। ये आपके कौन से आइडियोलॉजी में बैठता है गावड़े साहब? आपकी पार्टी के या आपके गवर्नमेंट के कौन से आइडियोलॉजी में बैठता है? इसके बारे में आपका जस्टिफिकेशन क्या रहेगा? आप बताइए। इसका जवाब तो आपकी पार्टी पावर में है, आपकी सरकार है। इसका जवाब तो हमें नहीं, इस चैनल पे नहीं, आपको अभी वहां पर जो लड़की बहन को आपने दिए ना पैसे, और जिनके पैसे आप फ्रीज करेंगे वापस लेंगे ना, उनको देना है। तो कामले साहब, यू बिलीव दैट दिस वाज अ ब्राइब मनी टू इन्फ्लुएंस द वोटर बिफोर द इलेक्शंस? ये क्लियर कट आप कहना चाहते हो? Of course, this was a bribe. This was a bribe from the government. The Maharashtra government treasury, they have taken the money and they distribute to the Lati to vote for the BJP or the Mahavikas Aghadi.
It was absolutely bribe. I told you so many times. Right. So let's get Mr. Gowde. जी, let's ask Mr. Gowde. Gowde साहब, अगर ये मालूम पड़ा कि मान लीजिए कुछ 40 लाख, 50 लाख या 1 करोड़ या जितने भी लोग हैं, वो लाड़की बहन योजना के पुरावे में फिट नहीं आती हैं, तो क्या सरकार उनसे पैसे वापस लेगी सर? गावड़े साहब, देखिए, लाड़की बहन योजना जब हमने शुरू की, जी, सबसे विरोधी पार्टी के जो लोग हैं उनका स्टैंड आप पहले से देखिए। पहले इन्होंने उस हमारी स्कीम का विरोध किया। कांग्रेस के कुछ लोग कोर्ट गए क्योंकि गरीब महिला को पैसे मिल रहे हैं, ये उनको हजम नहीं हो रहा था। फिर उन्होंने ये कहा कि ये जो स्कीम है वो इम्प्लीमेंट हो ही नहीं सकती, पैसा ही नहीं है। फिर उन्होंने ये कहा कि इलेक्शन के बाद ये स्कीम बंद होगी। ऐसा कुछ नहीं हुआ। हमने उसका पूरा फाइनेंशियल जो है मैनेजमेंट वो किया है, और हमने पहले भी ये योजना अच्छे से चलाई और अगले 5 साल भी ये योजना हम बहुत अच्छे से चलाएंगे। और जल्दी ही हमने जो प्रॉमिस किया है कि हम 1500 से 2100 उसका अमाउंट करेंगे, वो भी हम करेंगे। सर सवाल कुछ और साहब, नहीं, दूसरा मैं वो उसके ऊपर आ रहा हूँ। प्लीज देखिए, मैं आपको अश्योर करता हूँ, जी बोलिए, जो भी लाड़की बहन योजना के बेनिफिशियरीज होंगे जी, उसमें से किसी का भी पैसा वापस नहीं लिया जाएगा। जो रियल बेनिफिशियरीज होंगे वो किसी का भी पैसा वापस नहीं लिया जाएगा। रेस्ट अश्योर। उल्टा हम जो रियल हमारे बेनिफिशियरीज है, अगर कुछ बेनिफिशियरीज रहे हैं जो इस योजना के लिए एलिजिबल है लेकिन उन्होंने अभी तक उसके लिए अप्लाई नहीं किया, उनको भी हम इसमें इंक्लूड करेंगे और बहुत अच्छे से हम ये योजना रन करेंगे। और उसको 2100 जो रुपए करने का हमने वादा किया है वो भी करेंगे। गावड़े साहब, 20 लाख, सुनिए 20 लाख आप अगर हाँ, देखिए इस योजना के जो बेनिफिशियरीज है अभी महाराष्ट्र में वो 1 करोड़ से ज्यादा है। और अगर और एलिजिबल लोग हैं वो इस योजना का फायदा लेना चाहते हैं तो हमको उसको देने में कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अगर कुछ लोगों ने फेक डॉक्यूमेंट्स करके या फिर आप कुछ बातें सामने आई कि कुछ पुरुषों ने फेक अकाउंट के थ्रू इस योजना का लाभ लिया और पैसे लिए, तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जो बेनिफिशियरीज है जो इस क्राइटेरिया में बैठते हैं उस किसी के भी खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाएगी। अगर कुछ देखिए, कुछ मरे हुए लोग हैं उनके ऊपर अगर किसी ने अकाउंट खोले हैं और उसके थ्रू पैसा निकाला जा रहा है, किसी ने मल्टीपल अकाउंट खोले हैं, ये जो फ्रॉड कर अगर कुछ अकाउंट खोले गए होंगे, फ्रॉड कर चीटिंग कर फोर्जरी कर अगर कुछ अकाउंट खोले गए होंगे, उसके खिलाफ कार्रवाई करी जाएगी। जो हमारे रियल बेनिफिशियरीज बहना है जो एलिजिबल है इस स्कीम के लिए, किसी के भी खिलाफ कार्रवाई करने का कोई सवाल नहीं आता। बट इफ दे आर फाउंड टू बी इनएलिजिबल, साहब, बट आपने आंकड़ा दे रहे कि 20 लाख महिलाओं का वापस ले लेंगे, वापस है नहीं, उनको डिस्क्वालीफाई कर देंगे फ्रॉम द स्कीम। तो 20 लाख का आंकड़ा भी आप फ्लोट कर रहे हो। अराउंड 20 लाख कोई नहीं, ऐसा कोई आंकड़ा नहीं है। ऐसा कोई 20 लाख का 20 लाख का कोई आंकड़ा नहीं है। मैंने स्पेसिफिकली कहा है, अगर फ्रॉड कर फोर्जरी कर चीटिंग कर देखिए, जैसे पुरुष है उसने इस योजना का लाभ लिया है, अगर कुछ मयत लोग हैं, डेथ लोग हैं, उनके नाम के ऊपर अकाउंट खोले गए हैं, और या फिर हमने कहा कि एक घर में इतने लोगों को मिलेगा, उससे ज्यादा अगर किसी ने कुछ किया है तो इसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। और वो आंकड़ा बहुत छोटा होगा मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि डीबीटी के माध्यम से अभी हम बेनिफिट देते हैं, लेकिन कुछ लैप्सेस रह जाते हैं, उसकी वजह से कुछ पुरुष हो गए या फिर कुछ मरे हुए लोग हैं उनके अकाउंट खोलकर कुछ एजेंट लोग इस तरीके का काम करते हैं, उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। किसी भी महिला के अकाउंट के ऊपर कोई कार्रवाई जो बेनिफिशियरी है जो एलिजिबल है उसके खिलाफ नहीं करेगी। राइट। सो आई थिंक तिजोरी इफेक्ट होने लगा आपका, बिकॉज एग्रीकल्चरल मिनिस्टर कोकाटे जी ऑलरेडी चिल्लाना शुरू कर दिया है कि फार्मर्स का लोन वेवर का काम इसीलिए नहीं हो रहा बिकॉज लाड़की बहन इज टेकिंग ऑल दी कंप्लीट मैक्सिमम पैसा उधर जा रहा है, और फार्मर्स का लोन वेवर जो हम लोग प्रॉमिस किया था वो हम लोग कर नहीं पा रहे। गावड़े साहब, दिस इज योर एग्रीकल्चर मिनिस्टर मिस्टर कोकाटे। उन्होंने क्या कहा मुझे पता नहीं, लेकिन सरकार की भूमिका ऐसी नहीं है। हमने जो लाड़की बहन योजना का फाइनेंशियल प्लानिंग किया है वो पूरा प्लानिंग हमने किया है, और उसके बाद वो योजना हमने फ्लोट की है, और हमने अभी दिसंबर का भी जो ये था इंस्टॉलमेंट था वो भी हमने दे दिया है। तो कोई फाइनेंशियल बर्डन लाड़की बहन योजना की वजह से हमारे यहाँ पे नहीं आएगा। अजीत दादा पवार उनकी पार्टी के सीनियर नेता है और फाइनेंस मिनिस्टर भी है, उन्होंने भी ये बहुत बार कही है
मानिक कोकाटी ने जो भी कुछ कहा मुझे पता नहीं, लेकिन वो अजित पवार की बात को सुनेगी। Right. So I think Mr. Kamble wanted to make an intervention. जुनकर साहब मैं आपके पास आ रहा हूँ, एक सेकंड बस। कामले साहब आप कुछ बोलना चाह रहे थे, आपने हाथ उठाया था अपना, बोलिए सर। नहीं, गावड़े साहब ने अभी जो बात कही, मेरे सवाल के जवाब उन्होंने दिया। आपने रैंडमली सभी लड़की बहन कितने करीबन 2.5 से 3 करोड़ लड़की बहनों के अकाउंट में पैसे डाल दिए। अब आप कह रहे हैं कि वेरिफिकेशन होगा, इसका मतलब ये है क्या ये धोखाधड़ी नहीं है? मतलब आपके सिस्टम ने जो पैसे जो लाडली बहनों के अकाउंट में डाले, उसके पहले उनके डॉक्यूमेंट्स हो या उनकी जो भी वो पात्र है या अपात्र है इस योजना के लिए, इसकी तहकीकात की नहीं। आपको उस वक्त वोट चाहिए थे लाडली बहन के, इसलिए उनके अकाउंट में पैसे डाले। अब आप कहते हैं कि वेरिफिकेशन होगा, तो क्या यह धोखाधड़ी नहीं है? बात पैसे देने की नहीं, बात लाडली बहन के अकाउंट में 1,500 नहीं 1.5 लाख डालिए, हमारा कोई विरोध नहीं। लेकिन सवाल ये है कि इलेक्शन के पहले 4 महीने पहले आप ये योजना लेके आते, तो पिछले 5 सालों से आप ये 2-2.5 सालों से आप इस स्टेट में पावर में थे, तब आपने पैसे क्यों नहीं दिए? अब आप कहते हैं अगले 5 सालों तक ये योजना शुरू रहेगी। लेकिन गवड़े साहब, अब मेरे सवाल का जवाब आपने दिया कि पहले जब पैसे आपने बांटे, इलेक्शन के पहले 2-3 महीने से शुरू कर दिए, तब आपने ये वेरिफिकेशन किया, क्योंकि तभी सभी जो महाराष्ट्र के जो लाडली बहनें हैं उनके वोट आपको चाहिए, इसलिए आपने रैंडमली पैसे डाल दिए। अब आप एक क्राइटेरिया लेके आते हैं कि ये क्राइटेरिया होगा तो उनको ही पैसे मिलेंगे, बाकी लोग के अकाउंट फ्री होंगे। अब जिन्होंने क्राइटेरिया डिक्लेयर नहीं किया, मेरी बात सुनिए, पहले डिक्लेयर किया वो क्राइटेरिया है वही। मेरी बात सुनिए, अगर वहां पर जो डेथ पर्सन थे उनके अकाउंट खोले गए, तो जो भी वहां की जो अथॉरिटी थी उन्होंने उसको चेक नहीं किया कि उस पर कोई कंट्रोल नहीं था आपके प्रशासन का, ये मतलब हुआ। जो फेक डॉक्यूमेंट से जिन्होंने इसका बेनिफिट उठाया उन पर तभी कार्रवाई क्यों नहीं की, तभी आपने ये बात क्यों नहीं उठाई? अब ये बात उठ रही है, तो जो भी 2.5-3 करोड़ लाडली बहनों के अकाउंट में पैसे गए, अब कितने लाडली बहनों के अकाउंट में पैसे आ रहे हैं, ये सबसे पहली बड़ी बात है। ये पैसे आपने कंसेंट लिए थे। ये जो फ्री में बांटने की जो बात होती है ना, तो लाडली बहनों के पहले बच्चियों के आप उसको संरक्षण दीजिए, उनके बेटियों पर जो बलात्कार है उनको रोकिए। आप वो नहीं कर पा रहे हैं, और यहां पर आप 1,500 देने के बाद अब आप बात करते हैं कि उसका वेरिफिकेशन हो रहा है, उनके अकाउंट फ्रीज होंगे, इस तरह की बातें फैलाई जा रही है। तो कहीं ना कहीं ये सिर्फ और सिर्फ वहां के जो वोट है, आपको लाडली बहनों के वोट चाहिए थे, इसलिए आपने रैंडमली बांट दिए पैसे। Right, now let's get Junakar Sahab in. He has not spoken for some time. Junakar Sahab, 2.63 crore beneficiaries are there of the Ladki Bahin Yojana. 2.63 crores. और पेपर्स में हर मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर ये बात आ रही है कि दिस विल बी रिव्यूड, स्क्रूटिनी विल बी टाइटन्ड। अब पता लगाया जाएगा कि वास्तविकता में ये डिजर्व करते थे कि नहीं करते थे, और अगर सब डिजर्व करते थे तो इट विल कंटिन्यू, और अगर नहीं करते थे, जैसे कि अभी गावड़े साहब ने कहा किसी ने कोई फ्रॉड किया है, कुछ किया है, तो फिर उसके खिलाफ एक्शन होगा। आप इसको कैसे देखते हो सर जुनाकर साहब? ये जो योजना निकाली या योजना के माध्यम से पैसे देने का इन्होंने जो प्लान किया, आप देखिए हरियाणा का इलेक्शन और महाराष्ट्र का इलेक्शन एक साथ में होने वाला था। इन्होंने ये प्लान किया और इन्होंने दिमाग लगाया कि कैश के सामने वोट मिलने का अपने को चांस है, तो इसलिए उन्होंने 2-3 महीना इसको पीछे कर दिया इलेक्शन, और उसके बाद में इन्होंने ये जितने भी महिला आ रही है फॉर्म भर के उनको पैसा कैसा मिले, ये उन्होंने पहले देखने का कार्यक्रम किया। और कामले जी ने सही बताया कि आपने चेक करना चाहिए था। कोई भी गवर्नमेंट की योजना आप कभी भी ऐसी होती है क्या कि आप पहले पैसे लेके जाओ, बाद में हम चेकिंग करेंगे? आप छोटे योजना देखिए, पैसे बांटने वाली गवर्नमेंट की जितनी भी योजना है, आदमी ठग जाता है, लेकिन वहां से गवर्नमेंट के अधिकारी के माध्यम से पैसा लेने के लिए आदमी को हाथ में आने के लिए ठग जाता है, क्योंकि मिलता नहीं पैसा उसके हाथ में। पेंशन आपकी है तो पेंशन लेने के लिए हर साल में स्टार्टिंग में जाके आप जिंदा हो उसका प्रमाण पत्र देना लगता है, उसके बाद में आपके अकाउंट में पेंशन आती है। ये एक ही योजना ऐसी है कि आपने कभी कोई चेक किया नहीं, कौन पात्र है कौन अपात्र है, क्या प्रकार का फॉर्म भरा गया है, किसको अपने को पैसा देना है, बस पैसा बांटो।
और उस समय इलेक्शन कमीशन ने भी इनको काफी मदद की। उनके वजह से ये आपने कहा था कि गेम, एक बार शब्द वापरा था कि ये गेम चेंजर होगी। आखिर एक्चुअली ईवीएम पे भी हमारा संदेह है, लेकिन आपने अगर कहा कि ईमानदारी से हुआ है तो ये गेम चेंजर कैसे हुआ? आपने धोखाधड़ी किया और गवर्नमेंट का जो पैसा, टैक्स पेयर का पैसा था, आपने गलत किसी को भी घर पे जाने दिया, और जो सही जिनको मिलना चाहिए उनको मिला नहीं मिला, आज की तारीख में किसी को कुछ मालूम नहीं है। धनंजय जुरड़कर साहब, आप यहाँ पर प्यार लाड़की बहन को आप आलोचना कर रहे हो, दिल्ली में प्यारी दीदी बना के 2,500 देने की बात कर रहे हो। महालक्ष्मी योजना था कर्नाटका, आपने वादा 8,500 का किया था पर मंथ। अरे 1,500 जब इतना तिजोरी पर भारी है, 2,500 कहां से देंगे? 8,500 कहां से देंगे? 8,500 मतलब 1 लाख, 1 लाख per annum। तो कैसे ये स्कीम्स, क्या पॉपुलर स्कीम्स ऐसे ही आप लोग सब लोग अनाउंस करते हो? आप भी कहां डिफरेंट हो? आप भी वही है। आपने 2,500 प्रॉमिस किया, राहुल गांधी जी ने दिल्ली में 2,500 प्रॉमिस किया है, प्यारी दीदी स्कीम, यही कट पेस्ट आपने वहां पर कॉपी करके डाल दिया। जुरड़कर साहब, हाउ यू गोइंग टू सस्टेन? कैसे सस्टेन करोगे आप? 1,500 भारी पड़ रहा है। हमने ये कभी नहीं कहा कि लाडली बहना के माध्यम से आप जो भी पैसा उनको दे रहे हो वो पैसा मत दो, ऐसा ये हमारा कहना नहीं है। हम तो यही कह रहे हैं कि आप दो, लेकिन पहले आप कोई प्लानिंग करो, कौन पात्र है कौन अपात्र है, हमारा बजट क्या है, क्या हम दे सकते हैं, और उसमें इतने पैसे अगर हम बांट सकते तो कितने लोग एलिजिबल होना चाहिए, कोई प्लान होता है। इलेक्शन के पहले महीना, 1.5 महीना, 2 महीना आप कोई भी प्रकार की योजना पैसे बांटने वाली लाएंगे तो उसका आपको अलग ही प्रकार का रिजल्ट उसके अंदर मिलेगा। हमने जितनी भी बार कहा अलग अलग स्टेट में पहले बोल ही रहे थे आपको कि बीजेपी को बहुत बढ़िया रिजल्ट आने वाला है, आप लोग हारने वाले हो, हम बोल रहे थे आपको। उस वक्त आपने मुझे बोला था, सर मुझे अभी तक याद है, आपने मुझे बोला था रिजल्ट वाले दिन आप कांग्रेस के ऑफिस में आइए, मिठाई खाइए। मैं कहा बीजेपी के ऑफिस में मिठाई पटेगी, आपके ऑफिस में कोई नहीं होगा, ये बोल दिया था मैंने सर, देख लीजिए उस शो में है। आपने बिल्कुल बोला था, मेरे को याद है, और मैं वही बोल रहा हूँ आपको कि ये एक प्रकार का गवर्नमेंट के मंत्रियों ने और बैठ के किया हुआ करप्शन है। ये आपकी साथ में, हरियाणा के साथ में अगर एक चुनाव हो जाते थे तो क्या आपको ये लाडली बहना का जो प्रकार का बेनिफिट हुआ है वो होता था क्या? ये भी सवाल महत्व का है। राइट, सो लेट मी गो अक्रॉस टू हेमंत कामले साहब एंड देन फाइनली वी विल कम बैक फॉर अ फाइनल कमेंट टू गावड़े साहब। हेमंत कामले साहब, do you agree with this? I would love to know. Do you agree? What is the new generation that we are making? मतलब घर में बैठो पैसे लो, is that what we are doing? आपने वोट दे दिया, आपको पैसे मिल गए, आप आराम से बैठिए। मतलब shouldn't there be some terms and conditions कि भाई आपको पैसे मिल रहे हैं, आप क्या जाकर के नौकरी ढूंढ रहे हैं, नहीं ढूंढ रहे हैं, आपको प्रूव करना पड़ेगा कि हाँ भाई मैं नौकरी ढूंढ रही हूँ या नहीं ढूंढ रही हूँ, मुझे काम नहीं मिल रहा है, इसकी वजह से मुझे पैसे दिए जाएं और समथिंग लाइक दैट। ये क्या है? ये ऐसे तो हम अपने लोगों को मतलब कार्यहीन बना देंगे। क्या कर रहे हैं हम लोग? कामले साहब, डू यू एग्री विद दिस फिलॉसफी? बोलिए सर। देखिए कैसे है ना कि इसकी शुरुआत भी कांग्रेस ने भी की थी और जितनी भी पार्टियां हैं कि पावर में आने के लिए जिस तरह की योजना, ये फ्री योजना, मुफ्त योजना, ये कांग्रेस ने भी की है, भारतीय जनता पार्टी भी करती है, या साउथ में आप जाओगे, दक्षिण के राज्यों में वहां पर भी चल रही है। पहले तो ये सब मेंटेलिटी को कहीं ना कहीं तो हमें रोकना पड़ेगा, इस तरह की मानसिकता को रोकना पड़ेगा। देखिए कैसे है कि आप यहाँ पर लाड़का भाऊ, फिर आपका हो गया लाड़की बहन हो गया, तो महाराष्ट्र की बात करता हूँ मैं। अभी महाराष्ट्र गवर्नमेंट की इनोवेटिव सोसाइटी, महाराष्ट्र गवर्नमेंट इनोवेटिव सोसाइटी, ऐसे कुछ एक कंसेप्ट है, मैंने तो वेबसाइट पर गया था, लेकिन मुझे ये कंसेप्ट बहुत अच्छा लगा। स्टार्टअप, जो स्टार्टअप मॉडल्स है उसके लिए पैसे चाहिए, बहुत सारे हमारे यहाँ पर ऐसे नौजवान है जिनके पास नए नए कॉन्सेप्ट है, वो जब वहां पर मुद्रा लोन या किसी तरह के लोन लेने जाते हैं उनको लोन मिलता नहीं है, इसी मुद्रा पेपर पर है। मैं कितने ऐसे लोगों को आपके सामने पेश कर सकता हूँ कि उनके पास बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट है, इनोवेटिव प्रोडक्ट है, इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स है, लेकिन उनको वो लोन मिलता नहीं, वहां पर उनसे बैंक में कर्ज मिलता नहीं, क्योंकि ये सरकार तो जाहिर करती है। लेकिन आप महीने के 3,000 दो बेरोजगार को, आप लाडली बहन को 1,500 दो, ये सब वोट खरीदने के, ये सब है ना सभी पार्टियों, मैं तो कहता हूं सभी पार्टियों ने इस तरह के जो कैंपेन है बंद कर दीजिए। आपको शाश्वत स्ट्रक्चरल काम करिए,
जिससे कि हमारे सिर्फ वोटर मत, आप जो जनता होती है ना, उसको वोटर कब कहते हैं? जब इलेक्शन आता है तब वो वोटर होते हैं। हर मतलब साल के जो 5 साल में आप सिर्फ आखिरी जो 1 महीना होता है ना, तब वो वोटर बन जाते हैं। जी। तो उनको वोटर करके उनको नॉमिनेट मत करिए, उनको उनकी पहचान से वोटर मत करिए। वो इस महाराष्ट्र के देश के नागरिक है। तो उनको आप जब सत्ता में आते हो, पावर में आते हो, तो आपकी योजनाएं ऐसी होनी चाहिए कि सच में उनको बेनिफिट होना चाहिए। फिर वो किसान हो, वो बेरोजगार हो, वो महिला हो, या फिर ऐसे बहुत सारे हमारे इनोवेटिव आइडियाज लेकर आ गए। हमने जो मेक इन इंडिया किया, कितने बेनिफिशियरी आ गए वहां पर, आप मुझे बता सकते हैं गावड़े साहब? आपके पास इसके कोई आंकड़े हैं? इनोवेटिव सोसाइटीज जो आपकी है, तो इनोवेटिव सोसाइटी में कितने लोगों को आपने लोन ये करते दिए, कितने लोग वहां पर अपने प्रोजेक्ट लेकर आए, और कितने लोग अपने पैरों पर खड़े हो गए? नहीं होता ये। मैंने कितने लोगों के लिए कोशिश की कि मुद्रा लोन से वो कुछ अपना कारोबार करे, लेकिन बैंक ऐसे लोन देने के लिए, क्योंकि वहां पर कोलेटरल सिक्योरिटी है। आप समझिए, हम हर बार लड़ते रहेंगे, कोई शाश्वत काम पर लड़े ना। जिस मुद्दों पर सोसाइटी को, वहां के नौजवानों को, वहां के युवतियों को, वहां के लेडीज को मतलब कुछ ना कुछ उसका फायदा हो, इसीलिए आपको फॉर्म चाहिए। ना कि ये ऐसे फ्री के स्कीम लेके आए मुफ्त। भाई हमने 10 किलो चावल मिलेंगे, 5 किलो गेहूं मिलेंगे, इस तरह की योजना से अच्छा है कि आप सच्चा काम दो उनको। हेमंत जी अभी 1,500 देके उनको अफाइज क्यों बता? Hemant Kamble ji, Gowde साहब talked about political alliance and ideological alliance. तो आपने आलोचना किया political alliance क्या, ideological alliance क्या? राज साहब ठाकरे जी, देव फडणवीस जी बहुत क्लोज थे, और असेंबली में लग रहा था कि आप लोग साथ में आने वाले थे, और देव फडणवीस जी ने भी कहा कि हमारे आइडियोलॉजी एकदम मिलते हैं। राज साहब ने भी कहा, और मनसे के बहुत सारे नेता ने कहा आइडियोलॉजी मिलते हैं, जुड़ना चाहिए। क्या एकनाथ शिंदे जी एक फैक्टर था? बिकॉज अब बहुत बातें होने लगे कि एकनाथ शिंदे जी के वजह से राज साहब और देव फडणवीस साहब एक साथ लड़ नहीं पाए। तो आगे जाके क्या देखते हो, कैसे बीएनसी इलेक्शंस में आशीष शेलार जी जाके राज साहब से मिले, और भी नेता जाके राज साहब से मिल रहे हैं, क्या होने वाला आगे? Pradeep ji, I was part of that meeting day before yesterday. The meeting was at Shivsek के जो meeting है। देखिए बात ये है ना कि ये तो बात छिपी नहीं है कि कहीं ना कहीं हमारे और भारतीय जनता पार्टी, देखिए यहाँ पर पहले से अब की बात नहीं कर रहा हूँ, पहले से एक विचारधारा ऐसी है कि भारतीय जनता पार्टी हो, शिवसेना हो, या अभी मनसे हो, या जो भी पार्टी है, एक हम इनको कहते थे कि राइट विंग में। फिर आपके हो गए कांग्रेस और एनसीपी, या जनता दल हो, या इस तरह से जेडीयू जिस पार्टी है, वो इनसे कहीं ना कहीं अलग तरह से। लेकिन अब जो है यहाँ का पॉलिटिकल जो सिनारियो पूरी तरह बदल चुका है। 2019 में जिस तरह से शिवसेना, उद्धव ठाकरे जी ने जिस तरह से आइडियोलॉजी को छोड़कर कांग्रेस और एनसीपी के साथ गए, मैं कितनी बार आपके इस चैनल पर ये बात कर चुका हूँ कि ये आइडियोलॉजी आपने कैसे छोड़ दी? पावर के लिए कि शिवसेना बीजेपी को छोड़कर एनसीपी और कांग्रेस के साथ गई, सिर्फ इस बात के लिए कि उद्धव जी को 2.5 साल का मुख्यमंत्री पद नहीं मिला। बात यहाँ पर बीजेपी के साथ जाने की या उनके फेवर में बात करने की नहीं है। बात यह है ना कि आपने आइडियोलॉजी छोड़कर वहां पर गए, और वही गलती भारतीय जनता पार्टी ने की कि आपकी ये कौन सी, मतलब किस तरह की मानसिकता थी कि 70,000 करोड़ के इरिगेशन घोटाले में जो अजित पवार आपने जिनको फ्रेम किया था, उन पर करप्शन के चार्जेस फ्रेम किए थे, वो उनको आपने शुद्ध कर लिया, उनको आपने क्लीन चिट दी, और वो आपके साथ बैठे। तो ये कहीं ना कहीं महाराष्ट्र की जो पॉलिटिक्स जिस तरह से गंदगी हो गई है ना, यहाँ पर कीचड़ हो गई है, महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में कीचड़ हो गई, इसलिए सब जगह कमल खिल रहा है। क्यों? क्योंकि जितने भी भ्रष्टाचारी थे, जितने भी करप्ट थे, आपने अपने साथ ले लिए। ये कौन सी आइडियोलॉजी है जी साहब, क्या बता सकते हैं आप? ये कौन किस तरह की आइडियोलॉजी है? क्या आपको अजित पवार चलते हैं, आपको सुनील तटकरे चलते हैं, जितने लोगों पर आरोप थे वो सब आपको चलते हैं? ये आइडियोलॉजी कौन सी है, बता सकते हैं? ये महाराष्ट्र को पता तो चले। आपने बहुत प्रश्न पूछे गावड़े साहब। ये 5 साल, ये 10 सालों में जिस तरह से कीचड़ किए ना महाराष्ट्र में, ये पिरोगा में महाराष्ट्र का आपने चेहरा बदल दिया।
तो आपकी जो 237 सीट आई ना आपकी अलायंस में, कोई इसमें मुझे आश्चर्य नहीं लगता, कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि कीचड़ हो गया, कमल खिल गया। Right. आपने पहला देखिए, कांग्रेस के खिलाफ 2009 से लेकर 2013 तक आपने जिस तरह की भ्रष्टाचार के आरोप किए, और उसके बाद लोगों की कहीं ना कहीं आपने आशाओं को जगाया था, कि लोगों को एक लगा था कि इस मतलब कांग्रेस के भ्रष्टाचार से ऊपर अब भारतीय जनता पार्टी एक हमारे लिए कहीं ना कहीं एक पर्याय है। लेकिन वो पर्याय भी आज कांग्रेस जिस तरह से भ्रष्टाचार से लिप्त, आप भी उसी तरह जा रही है। तो फर्क क्या है आपको, आपने और उसमें? गावड़े साहब, गावड़े साहब गावड़े साहब बहुत प्रश्न पूछे कांबळे साहब आपको। I think you were inspired by Uddhav Thackeray. Looks like it. गावड़े साहब, जो उद्धव ठाकरे जी ने किया आइडियोलॉजी को बेसमेंट में डाल करके कांग्रेस और एनसीपी के साथ जो उन्होंने अलायंस कर ली, आई थिंक यू वर इंस्पायर्ड बाय दैट। इज दैट व्हाट हैपेंड गावड़े साहब? नहीं, दो बातें, मतलब दो विषयों की चर्चा हुई है। पहले लाड़की बहन के बारे में कुछ बातें कही गई। जी 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 जी, और कांग्रेस के प्रवक्ता ये कह रहे थे कि हमने जनता को ब्राइब किया और उसकी वजह से हमको इलेक्शन में विक्ट्री मिली है। मुझे का जो मैंडेट है उसका, और महाराष्ट्र की जो गरीब महिलाएं हमारी बहनें हैं उनका अपमान है कि उन्होंने पैसे लेकर वोट दी। अभी ये सब बातें उन्होंने इलेक्शन के पहले भी कही है, जनता ने सब सुना भी है और जनता ने अपना मैंडेट भी दिया है, उसके ऊपर मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। लेकिन ये दोनों जो है, मतलब मनसे के हमारे मित्र है और कांग्रेस के भी हमारे जो मित्र है, वो लाड़की बहन योजना के बारे में कुछ भ्रम फैला रहे हैं। हमने कोई नया क्राइटेरिया नहीं लाया है, या फिर नई गाइडलाइंस या फिर नया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं लाया है। जो क्राइटेरिया किसी भी स्कीम के लिए पहले जो क्राइटेरिया तय होता है वही क्राइटेरिया है, और ना ही हमने कोई ये वेरिफिकेशन का ड्राइव शुरू किया है और अब वेरिफिकेशन करेंगे और लोगों को हटा देंगे, ऐसा कुछ नहीं हुआ है और ऐसा कुछ होने भी नहीं वाला है। कोई भी स्कीम होती है, लाड़की बहन छोड़िए, किसान सम्मान स्कीम होगी या फिर मनरेगा होती है, उसमें वेरिफिकेशन का प्रोसेस चलता रहता है। ये कोई आज का नहीं है, हर स्कीम में ये चलता है। और दुर्भाग्य है कि कुछ एक आधा % ट्रांसपेरेंसी का अभाव होता है, कोई गवर्नमेंट का बाबू होता है, वो कुछ गलतियां कर देता है, वो कभी पैसे लेकर करता है, कभी ऐसे करता है। तो मतलब अभी डीबीटी के वजह से वो परसेंटेज भी बहुत कम है, लेकिन पॉइंट कुछ % ऐसा कुछ हो जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये कुछ नया हम कर रहे हैं ऐसा नहीं है, वो हर स्कीम के बारे में होता है। तो ये बात। दूसरी बात, हमारे जो मनसे के मित्र है उन्होंने अभी आइडियोलॉजिकल अलायंस के बारे में कुछ कहा था। देखिए, मैंने पहले भी कहा है कि हम हमारी आइडियोलॉजी के बारे में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। जो भी पॉलिटिकल पार्टी हमारे साथ अलायंस कर रही है उनको इस बात का संज्ञान होना चाहिए कि हमारी आइडियोलॉजी क्या है। अभी चलो हमने एनसीपी के साथ अलायंस किया, लेकिन फिर भी हमने औरंगाबाद का छत्रपति संभाजीनगर किया, हमने उस्मानाबाद का धाराशिव किया, हमने जो हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज की धरोहर है, महाराष्ट्र के गढ़ और किले, वहां पर जो इस्लामी अतिक्रमण हो रहा था उसको हमने हटाया। तो हमने जो पुरानी एनसीपी थी उसकी आइडियोलॉजी को नहीं ना स्वीकार किया। ये जो अलायंस है ये हमारे टर्म्स के ऊपर है। दूसरी बात, भ्रष्टाचार के बारे में उन्होंने कहा कि आपने भ्रष्ट लोगों को साथ लिया, ये किया, वो किया, जिनको आप भ्रष्ट बोला करते थे। हाँ जी, जरूर। किसी भी व्यक्ति के खिलाफ अगर पहले मुकदमा था और वो इस अलायंस में आया और मुकदमा बंद हुआ, ऐसा नहीं हुआ है। किसी के भी खिलाफ कोई भी इंक्वायरी बंद नहीं हुई है। हर इंक्वायरी का स्टेटस अगर आप पूछोगे तो मैं आपको इंक्वायरी करके बता दूंगा। कोई भी इंक्वायरी बंद नहीं की गई है और किसी भी की इंक्वायरी बंद नहीं होगी। किसी भी की इंक्वायरी बंद नहीं होगी। तो क्लीन चिट दे दिया सर रविंद्र गावड़े साहब, कम ऑन रविंद्र वाइकर में गावड़े साहब, आई डोंट एक्सपेक्ट दिस। एफिडेविट फाइल कर दिया कि nothing wrong, and Praful Patel is getting his entire property back after you said that he is closely involved with Iqbal Mirchi. I mean, come on. Anyway, that will take a long time. Junarkar साहब, I want to ask you because प्रियंका गांधी जी ने पूरे देश में इस प्रकार से वातावरण बना दिया, one nation, one poll, one election is unconstitutional. Unconstitutional, इतने ईवीएम आप लाएंगे कहां से? प्रियंका गांधी जी ने पूछा। और आगे जाके कांग्रेस के आपके डाटा एनालिटिक्स विंग ने इलेक्शन कमीशन को जवाब दिया है कि 72 लाख जो राहुल गांधी जी ने कहा वोटर्स 4 महीने में कहां पैदा हो गया, आपने लेटर में 50 लाख वोटर्स का एडिशन कैसे हो गया, एंड टोटल वोटर्स आर मोर देन द एलिजिबल वोटर्स। तो क्या आप ईवीएम का इशू लेकर आगे बढ़ने वाले हो?
बिल्कुल ये इशू आगे लेके बढ़ेंगे, क्योंकि वन नेशन वन इलेक्शन का जो है, ये जो चीज उन्होंने लाई है, संघ राज्य प्रणाली को नुकसान पहुंचाने वाली ये चीज है। आप देखिए, अगर 3 साल में या 4 साल में विधानसभा का सरकार अगर गिर जाती है, तो पेंडिंग 1 साल है या 2 साल है, उसी के लिए आप वहां वापस री इलेक्शन करेंगे। तो जो 5 साल के लिए विधानसभा का इलेक्शन होना चाहिए, वो आप टाल रहे हैं। जिसके पास पैसे है, जिसके पास साधन संपत्ति है, वही पार्टी एट ए टाइम पूरे देश में कैंडिडेट खड़ा कर सकती है या राज्य में कैंडिडेट खड़ा कर सकती है। उसके लिए जो शक्ति चाहिए, क्षेत्रीय पार्टी के पास उतनी ताकत नहीं है। तो आप क्षेत्रीय पार्टी को, आपने 1-2 बार इन्होंने उनके देश के जो अध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने ये भी कहा था कि हमको ये विपक्ष चाहिए ही नहीं, विपक्ष के विहीन होके उनको देश में खुद की एक ही पार्टी कैसे भी करके रहे, इस प्रकार का उनको काम चाहिए। अपने पास ईवीएम और वीवीपैट मशीन अपने को दुगने चाहिए, सुरक्षा बलों की संख्या अपने को दुगनी करनी पड़ेगी। ये सब करना इतना आसान नहीं है। और हम लोग ये चाहते हैं कि अगर बार बार चुनाव होता है तो कोई गलत नहीं होता है, उसमें पॉलिटिकल पार्टी जनता को उत्तरदायी होती है। और ये भारतीय जनता पार्टी चाहती नहीं कि किसी जनता के कोई सवाल को हम जवाब दे। इसके लिए ये एक ही बार में इलेक्शन लेके काम खत्म करना चाहती है, और इसको हम विरोध करते हैं। जी गावड़े साहब, आप कुछ बोलना चाह रहे थे? जी, मैंने कांग्रेस पार्टी के हमारे मित्र संघ राज्य के बारे में बात कर रहे थे, और वन नेशन वन इलेक्शन कैसे संघ राज्य के लिए ठीक नहीं, ये बात कर रहे थे। वो शायद कांग्रेस का इतिहास भूल गए होंगे कि 1967 तक हमारे यहाँ पर वन नेशन वन इलेक्शन ही हुआ करता था जी। और वो वन नेशन वन इलेक्शन बंद क्यों हुआ? तो इनका जो संघ राज्य के प्रति विरोध है, उसकी वजह से बंद हुआ, क्योंकि इंदिरा गांधी ने 11 राज्यों की जो सरकारें थी, जो लोक नियुक्त सरकारें थी, उसको बर्खास्त किया था। उसकी वजह से जो हमारा वन नेशन वन इलेक्शन का साइकिल था, वो डिस्टर्ब हुआ था। ये देश का इतिहास है। तो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ये अपना जो पार्टी का इतिहास है वो पहले देखे। दूसरी बात जो उन्होंने लॉजिस्टिक्स के बारे में कही थी, हमारा देश कैपेबल है, वन नेशन वन इलेक्शन के लिए हमारा देश कैपेबल है, उसके बारे में कोई संभ्रम रखने की कोई बात नहीं है। धन्यवाद जी। राइट, कामदेव साहब, डू यू एग्री विद वन नेशन वन इलेक्शन सर? जस्ट वन फाइनल वर्ड फ्रॉम यू। No, it is not possible. This is absolutely not constitutional. Not possible. Because not possible. Not possible. See, कैसे है ना कि इसको आपको पॉसिबल करने के लिए पहली बात तो जो संघ राज की बात की, मैं इससे पूरी तरह सहमत हूँ कि जो हमारे जो प्रादेशिक पार्टियां हैं उनको कहीं ना कहीं खत्म करने की बात हो रही है। दूसरी बात तो जो राज्यों के अधिकार है वो कहीं ना कहीं खत्म होंगे, और जो स्थानीय स्वराज्य पार्टी जो संस्थाएं होगी उनके भी अधिकार पर यहाँ पर कहीं ना कहीं जो उनके अधिकार खत्म हो जाएंगे। दूसरी एक बात है ना कि वन नेशन वन इलेक्शन आपको किस तरह से आप पेश नहीं करते, सिर्फ आपने कहा और आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया, इसका मतलब देश में एक्सेप्ट किया ऐसी बात नहीं होती है जी। आप तो जो संविधान की बात करते हैं, संविधान की बात सिर्फ यहाँ पर हर कोई अपने अपने फायदे की, यह सबसे बड़ी बात है। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा के इलेक्शन में इसका जो भी है परिणाम देखा है कि आपके जो सांसद थे गावड़े साहब, उन्होंने कहा था 400 पार। किसके लिए कहा था? कि संविधान को हम बदलेंगे, और इसका नुकसान आपको उठाना पड़ा। तो मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को जिस तरह से जो 2014 और 19 के इलेक्शन में जो मेजोरिटी मिली थी, वो मेजोरिटी जिस तरह से 2024 में कम हो गई, इसको 2029 में फिर से दोहराना नहीं है। तो आपको जो शक्तिशाली भारत की आप बात करते, जो महासत्ता की बात करते, इसके लिए आप काम करें। आप बेरोजगारी के लिए काम करें, आप महिलाओं के लिए काम करें, आप जो युवा है उनके लिए काम करें, आप आर्थिक सत्ता के लिए, आर्थिक उन्नति के लिए काम करें, ना कि आप जिन मुद्दों पर आपके सांसद बात करते हैं, आपके प्रवक्ता बात करते हैं, और जिस तरह से कुछ मुद्दों को मोड़ने के लिए वातावरण निर्मित करते हैं, ये सब आप बंद करें। बाकी आपके पास सत्ता है, आप अच्छी तरह काम करें, इसके लिए आपको शुभकामनाएं देता हूं मैं। Thank you, gentlemen. Thank you very much. It's been a very fruitful discussion. Gowde Saab, great pleasure talking to you.
Dhananjay Junakar Saab, thank you very much. And of course, Hemant Kamble ji, always a pleasure having you with us. और Junakar साहब आप गायब ना हो जाएं. हाँ, कामले साहब आप भी you also disappear. It's lovely to have you on the show, sir. Thank you very much. आप सब लोगों को नमस्कार. Thank you so much. पूरे नेशन नाउ की तरफ से जय हिंद, जय महाराष्ट्र. Thank you. जय महाराष्ट्र. Thank you. थैंक यू. I wonder why Mr. Gowda doesn't wait. He's, Even to say goodbye, he's always in a hurry. He just switches off. So maybe we'll ask him next time. In any event, it was a very nice discussion. But all the same, I still feel कि जैसा हेमंत कांबले साहब ने कहा, the rise of Mr. Karad was visible to everybody. जिस प्रकार वाल्मीकि कराड़ साहब जो हैं वो जबरदस्त तरीके से बढ़े और उनका जो रुतबा है, उनका जो भावकाल है बड़ा पूरे बीड़ में, वो तो सबको मालूम था. तो तब लोग क्या कर रहे थे? लोगों को ये सवाल पूछना बहुत जरूरी है. दूसरी चीज प्रदीप जी, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लाड़की बहन योजना में अगर कहीं पर आया है प्रदीप जी, जो आपने फिगर बताया 25 लाख का, 20 से 25 लाख का, 20 lakhs शॉर्टलिस्ट होने वाला है जी. कि एक और जगह पर आया है, दैट इज इन बिजनेस स्टैंडर्ड, 63 लाख लिखा है वहां पे, 63 lakhs आउट ऑफ 2.63 crores. तो ये पहले चेक करना चाहिए था ना, मतलब टू बिफोर यू हैंड ओवर गवर्नमेंट मनी यू हैव टू चेक, यू हैव टू स्क्रूटनाइज कि ये क्राइटेरिया में फिट बैठते हैं कि नहीं, जिसको पात्र अपात्र बोला जाता है. जैसा जुनेकर साहब ने कहा कि पेंशन लेने के लिए भी आप दौड़ा देते हैं एक विंडो से दूसरे विंडो पर, चप्पल गिर जाता है. बेचारे पेंशनर्स को. मुद्रा लोन जैसे हम ऋषि बोल रहे थे, मुद्रा लोन मिलता ही नहीं किसी मिलता ही को, नहीं. मिलता ही नहीं है. और जिसको मिलता है वो एक फ्रॉडुलेंट तरीके से एक्सेस हो जाता है, बैंक मैनेजर वगैरह वगैरह. तो सर मुद्रा लोन उसी को मिलता है जो किसी एजेंट को जाकर के मिलता है, और बिल्कुल. वो एजेंट आपका काम करा के आपको दे देता है Exactly. फॉर अ फी, अपने आप नहीं मिलता है. तो मेरा ये कहना है कि इन सब चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए था. और अभी अगर आप पात्र और अपात्र कर रहे हैं लाड़की बहन योजना को लेकर के, तो सवाल तो पूछे जाएंगे साहब. हम लोग तो सवाल पूछेंगे, बाकी सब लोग भी सवाल पूछेंगे कि आपने अपात्र लोगों को इसलिए आपने पैसे दे दिए क्योंकि आप चाहते थे कि वो आपके लिए वोट करें. Exactly. Now, that's a major question which will have to be answered. it's our money It's our money. and we need to know. We need to know. We need to know. Let's be very, very clear. Well, that's just about it from both Pradeep ji and myself, और प्रदीप जी और मेरी तरफ से आज के शो में सिर्फ इतना ही. आप सब लोगों को प्रदीप जी और मेरी तरफ से नमस्कार. सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को अगर अभी तक नहीं किया है. अपने कमेंट्स भी भेजें. प्लीज डू सेंड इन योर कमेंट्स. वी लव टू रीड what you think, and some of the more colorful responses, of course, I'll read right over here. और that's just about it. पूरे नेशन नाउ की टीम की तरफ से आप सब लोगों को जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम. One thing, bathroom.